बैक टू बायो। अब पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे हम लोग देखे कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। नाउ ये पोलन ग्रेन तो डेवलप्ड हुआ, बट आफ्टर द डेवलपमेंट हाउ द पोलन ग्रेन विल मैच्योर, that we'll learn today. So today topic it will be pollen grains. Now here if we come to the pollen grains, so the pollen grains it's every various types, different types of the plants, they have the different types of the pollen grains. The size of the pollen grains also differs from each other. अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, देखोगे हिबिस्कस लेके वहां पे एग्जांपल किया गया था। तो इन हिबिस्कस हम लोग तो बचपन में बहुत देखे थे, चाइनोरस के ऊपर में हम लोग टच करते थे तो वहां पे येलो येलो पोलन ग्रेन्स हम लोग को फील होता था। सो दैट पोलन ग्रेन्स जस्ट टेक इट एंड दैट पोलन ग्रेन्स वी हैव टू ड्रॉप इट ओवर द स्लाइड। यहाँ पे एक हम लोग स्लाइड दे सकते हैं, तो स्लाइड के ऊपर में हम लोग एक ड्रॉप वाटर देंगे और वाटर देने के बाद इसके ऊपर में हम लोग पोलन ग्रेन्स देंगे। अब देने के बाद हम लोग इस आसानी से देख सकते हैं इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, different types of the plants, they have the different types of the pollen grains. The size, shape of the pollen grains will be differs from each other, correct? Now here we have to know some detailed things. First of all things is that the study of the pollen grain. So the study of the pollen grain is actually called as the plinology. Okay, what is important? The plinology is the study of the pollen grain. But if we see the shape of the pollen grain is more or less spherical. It's more or less in maximum plant the shape of the pollen grains is round, circular. Okay, and the diameter also it will be ranges from the 25 to 50 micrometer, and the generally the pollen grain structure is yellowish. Okay, so जो हम लोग पीछे वाला कुछ पोर्शन को हम लोग समराइज कर लेते हैं ब्रीफली, तो वहां पे हम लोग जान लेंगे क्या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम लोग इस स्टेज में थे, तुम लोग वो वीडियो मिस कर गए तो वो वीडियो देख लेना, तुम लोग को वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब का। सो पोलन ग्रेन में हम लोग देखे थे क्या, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हुआ। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जब फॉर्मेशन हो जाएगा, आफ्टर द फॉर्मेशन सो ईच वन माइक्रोस्पोर दे विल बी गोइंग टू डेवलपमेंट इनटू द पोलन ग्रेन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से टेट्राड से क्या होगा, एक एक माइक्रोस्पोर आएगा, वो डेवलप होगा। अब डेवलप होने के बाद वो पोलन ग्रेन में मैच्योर होगा। करेक्ट, क्लियर? नाउ इफ यू सी द पोलन ग्रेन, सो द पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ब्रीफली हम लोग जानेंगे तो पोलन ग्रेन का कई तरीके का लेयर होता है। जो जनरली द पोलन ग्रेन्स दे हैव walls, okay, or layers. So generally the pollen grain wall we can easily call them as sporoderm. So the derm means definitely some layers or something related with the skin, so outer layer. So the layer of the pollen grain is generally called as a sporoderm. Now this sporoderm, it is of two type. Okay, first thing is the outer layer. Next is that inner layer. Outer layer and inner layer. So the outer layer it's also called as exine. Correct, exine. And the inner layer it's also called as intine. Correct. So how to remember, यहाँ पे हम लोग कैसे याद रखेंगे? So the eggs means exterior, बाहर के तरफ, and inner layer, intine, in means inside. So eggs means outside, in means intine. So that means बाहर का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, exine, और इनर का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, intine. और जो पोलन ग्रेन का जो वॉल होगा उस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, that wall is known as sporoderm. Correct? Okay, so now here we have to know the some detailed morphology or detailed structure of these layers. Now once we comes to the exine layer, so here if you come to the exine layer, so there are some
specifying characters are also present in the exine layer. Okay, so once we come to the, let's do a detailed comparative study of the exine and the intine layer. So exine and intine. So the exine is, first of all thing, it's a outer layer, correct, and this is inner layer. तो एक्साइन लेयर क्या है? एक्साइन जो है आउटर लेयर है, और इंटाइन क्या है? इंटाइन है इनर लेयर है. अब ये जो आउटर लेयर है, अब देखो स्पोर जब डेहिसेंस होगा, स्पोर जब रिलीज होगा एनवायरमेंट में, तो स्पोर को कई तरीके का एनवायरमेंट से गुजरना पड़ेगा. तो इसके लिए उसके पास कुछ प्रोटेक्टिव होना चाहिए, कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए. तो जिसके लिए क्या है, तो आउटर जो लेयर होगा, वो आउटर लेयर क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए, या हार्ड और रिजिड होना चाहिए? यस, डेफिनेटली हार्ड और रिजिड होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई द पोलन ग्रेन इज जनरली थिकर, ओके, एंड आल्सो हार्डर. ओके, एंड हियर द इंटाइन लेयर generally it's thinner and softer, or we can also say stretchable. Now why this exine layer is thicker? क्योंकि इस exine layer में there is a deposition of very important, sporopollenin, very important, sporopollenin. क्या है? ये जो बाहर का जो लेयर है, यहां पे देख सकते हो तुम लोग, रेड मार्किंग से किया गया है. सो द स्पोरोपोलेनिन, इट्स अ वेरी टफेस्ट मटेरियल. ऐसा कोई नॉन एंजाइम नहीं है. टफेस्ट, सो फार टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इज द स्पोरोपोलेनिन. ऐसा कोई नॉन एंजाइम नहीं है, कोई एसिड नॉन नहीं है, कोई अल्कालाइन नहीं है, कोई ह्यूमिडिटी और कोई टेम्परेचर ऐसा कोई नॉन नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक कर सकता है. So far the toughest organic material is the sporopollenin. क्यों? क्योंकि ये ना एसिड से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना अल्कली से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना हीट से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना मॉइस्चराइजर से डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो किसी भी कीमत पे इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है. सो दैट्स व्हाई द स्पोरोपोलेनिन known toughest organic material. So that means the exine layer is made up of sporopollenin, whereas the intine layer is made up of pectose and cellulose. So what happens? Comparatively हम लोग देखेंगे, ये pectose और cellulose, they are comparatively softer. Okay, they are not that much of harder compared to the sporopollenin. क्योंकि sporopollenin बाहर में रहता है, exine layer में रहता है, और बाहर का लेयर क्या है? जनरली हार्ड है. तो हार्ड होगा तो क्या होगा? बाहर से कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकता है. बट सिमिलरली इनर जो लेयर है, तो इनर लेयर को उतना हार्ड होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर में ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है. तो इनर लेयर सॉफ्ट भी होगा तो काम चलेगा. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, द इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ द पेक्टोस एंड द सेलुलोज. बट हियर और थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर का भी फर्दर सब डिविजन है. ओके, एक्साइन का भी फर्दर सब डिविजन है. ओके, बट हियर इन द इंटाइन देयर आर नो फर्दर सब डिविजन. ओके, सब डिविजन यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे सब डिविजन नहीं है. बट हम लोग यहाँ पे एक्साइन लेयर में हम लोग को सब डिविजन आराम से देखने में मिलता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सब डिविजन? सो द सब डिविजन नेम इज द टेक्टम, बैक्यूला एंड द फुट लेयर. सो व्हाट इज द सब डिविजन लेयर? सो टेक्टम, बैक्यूला एंड फुट लेयर तो यहां पे हम लोग एक्साइन और इंटाइन का डिफरेंस जान लिए. अभी एक्साइन और इंटाइन का हम लोग जो डिफरेंस जान लिए, तो इसके साथ हम लोग अब नाउ पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, तो हम लोग को और भी अच्छे तरीके के समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, सो यहां पे हम लोग जाने मेन थिंग इज दैट दिस पॉइंट. ओके, this point, third point is very much important. Sporopollenin is present in the exine layer
and the intine layer there is a presence of pectose and the cellulose. Now focus on this structure of the pollen grain. Now in this pollen grain, this outer layer is made up of sporopollenin and that's why it is known as the exine. Now इस exine layer में हर जगह में क्या sporopollenin का डिपोजिशन होगा? नहीं. So there will be a deposition of sporopollenin in every layer or in every corner of the exine except germ pore. इस germ pore में there is a no deposition of the sporopollenin. So that means in the germ pore no deposition of sporopollenin. So इस जर्म पोर में किसी भी तरीके का स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा और क्यों यहाँ पे जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है? अब देखो, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड द स्पोरोपोलेनिन इज नॉन टफेस्ट मटेरियल. तो स्पोरोपोलेनिन एक टफेस्ट मटेरियल है. अब सपोज सोचो कोई भी चीज अंदर में आना चाह रहा है या बाहर निकल रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डाइजेस्ट द लेयर ऑफ द स्पोरोपोलेनिन. That is not at all possible. So there is only possibilities is there the germ pore. इस germ pore से भी कोई चीज अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है. बट यहाँ पे देखो जो मिडिल लेयर है और इनर लेयर है, इस इनर लेयर इंटाइन है, ये इंटाइन सॉफ्ट है. Why? Because ऑलरेडी उसके बाहर में एक्साइन लेयर प्रेजेंट है जो टफेस्ट है. तो सिंपल है, तुम्हारा घर में जो पर्दा है, सपोज सोचो तो इंटाइन लेयर इज जस्ट लाइक अ पर्दा. पर्दा हटाओ, रूम में घुसो. बट देखो जो तुम लोग घर के बाहर में जो डोर होता है, तो वही एंट्री और एग्जिट होता है मेन. वो एंट्री एग्जिट नहीं खुलेगा तो अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकता. तो इस जर्म पोर का काम क्या होगा? जर्म पोर का काम यही होगा, जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तब इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. सो दैट मींस पोलन ट्यूब विल कम आउट फ्रॉम दिस जर्म पोर. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जर्म पोर. एंड for that purpose only in this germ pore there is a no deposition of the pollen grain. क्योंकि उस germ pore से ही फ्यूचर में जब ये pollen grain स्टिग्मा के ऊपर फॉल होगा, जिसके ऊपर pollen grain का जर्मिनेशन होगा और यहाँ से pollen ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. उस pollen ट्यूब कहां से आएगा? उस pollen ट्यूब आएगा germ pore से बाहर में आएगा. germ pore का लेयर को तो डाइजेस्ट करके बाहर आ नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि जर्म पोर में तो और पूरा एक्साइन लेयर में तो हम लोग देख रहे हैं स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है. तो ओनली पॉसिबिलिटीज इज दैट पर्टिकुलर होल एंड दैट होल इज कॉल्ड एज अ जर्म पोर. एंड ड्यू टू दैट वन ओनली इन दिस पोलन ग्रेन इन द जर्म पोर लेयर देयर इज ए नो डिपोजिशन ऑफ द स्पोरोपोलेनिन. करेक्ट. अब आ जाते हैं इंटाइन लेयर में. सो इंटाइन लेयर आई ऑलरेडी टोल्ड द इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ द पेक्टोज एंड द cellulose. And due to that one only, this exine layer or intine layer, it's comparatively stretchable. Okay, the exine layer is completely it's non-stretchable. Okay, but intine layer is comparatively stretchable. अब intine layer में भी हम लोग देखते हैं there is a presence of the simple cytoplasm. That is the general structure of the pollen grain. Correct. Now क्या होता है? इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा. पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तब पोलन ग्रेन का क्या होगा? डेहिसेंस होगा. अब ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में क्या होगा? सिंपल, इसके बाद पोलन ग्रेन के अंदर में डेवलपमेंट के जो दौरान इसके अंदर में कुछ वैक्यूल आएगा एंड कुछ न्यूक्लियस आएगा. सो व्हाट आर दिस थिंग्स? दिस थिंग्स आर द वैक्यूल्स and that is nucleus. further क्या होगा? okay, further इस न्यूक्लियस का जो होगा इसका asymmetrical division होगा. इस न्यूक्लियस का asymmetrical division, and asymmetrical division के लिए इसमें asymmetrical spindle का फॉर्मेशन होगा. तुम लोग ऑलरेडी जानते ही हो. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और इस न्यूक्लियस में क्या होगा? asymmetrical spindle formation होगा. So this is asymmetrical
एसिमेट्रिकल स्पिंडल। अब देखो स्पिंडल क्या है, तुम लोग जानते हो सेल डिवीजन स्टेज में क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन जब होता है, स्पिंडल क्या करता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन को मदद करता है, क्रोमोसोम को दोनों पोल की तरफ खींचता है, करेक्ट, दैट इज द रोल ऑफ द स्पिंडल रे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पिंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, जो बाद में जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, ये न्यूक्लियस भी एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होगा, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो एसिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट, और एक बाद में छोटा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे जहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है तो इसके अंदर में क्या होगा, यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और एसिमेट्रिकल न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। और यहाँ पे चारों तरफ से सेल होगा, तो यहाँ पे दो सेल स्टेज फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा एक स्पिंडल टाइप्स का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। वाई, तो यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे छोटा सा सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एक सेल है, तो दिस सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर एंड द लोअर सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। अब जो लार्जर सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। अब देखो ये जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा है, तो जिसके लिए क्या होगा, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इतना ही ज्यादा होगा क्या, जो जेनरेटिव सेल है तो जेनरेटिव सेल भी इसके अंदर में फ्लोट करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर में सेल बड़ा है, सेल बड़ा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है, इट्स क्वाइट लार्जर, एंड ड्यू टू दैट वन this in this cytoplasm of the vegetative cell the genetic cell also floats, correct। now यहाँ पे हम लोग जेनेटिव सेल देखेंगे, तो जेनेटिव सेल में क्या है, एक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस मिलेगा जो कंपैरेटिवली छोटा है, बट यहाँ पे देखो वेजिटेटिव सेल जो है उसका न्यूक्लियस क्वाइट बड़ा है और एसिमेट्रिकल है, क्यों हुआ, बिकॉज ड्यू टू द एसिमेट्रिकल स्पिंडल, करेक्ट। नाउ यहाँ पे जेनेटिव सेल होगा, अब जेनेटिव सेल जो है देखो क्वाइट छोटा है, तो छोटा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म क्वाइट डेंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया बड़ा है, और एरिया बड़ा होगा तो वेजिटेटिव सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन है वो क्वाइट डाइल्यूट होगा, ओके। बट यहाँ पे क्या है, सेल छोटा है, जेनेटिव सेल छोटा है, तो छोटा होने के कारण में क्या होगा, इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म होगा दैट साइटोप्लाज्म विल बी क्वाइट कंसंट्रेटेड, करेक्ट। नाउ इस मोमेंट में क्या होता है, नियर अबाउट द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, नियर अबाउट द 60% ऑफ द प्लांट दे विल बी रिलीज दिस पोलन ग्रेन इन द एनवायरमेंट, ओके। मतलब क्या है, मैक्सिमम प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन होता है दैट पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज कंडीशन में बाहर में रिलीज हो जाता है, सो दैट मींस इन केस ऑफ द 60% प्लांट, सो दे विल रिलीज the pollen grain whenever that pollen grain in 2 cell stage condition, okay, whenever that pollen grain will be in 2 cell stage condition they will release the pollen grain। but बाकी अदर 40% प्लांट्स में क्या होगा, बाकी अदर 40% प्लांट्स में this generative cell it will undergo mitotic division, got it। अदर जो 40% प्लांट है उस 40% प्लांट में दिस जनरेटिव सेल इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड एज अ रिजल्ट दैट वन न्यूक्लियस विल स्प्लिट अप इनटू 2 न्यूक्लियाई। सो लेट्स लुक इनटू द पिक्चर। सो पिक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखे क्या, वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज है ही, उसके अंदर में कोई चेंज हुआ नहीं, बट जेनेटिव सेल क्या हो गया, इसमें ब्रेक हो गया, न्यूक्लियस उसका ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के कारण here there is a formation of 2 nuclei। now यहाँ पे कितना सेल स्टेज कंडीशन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, दैट मींस टोटल 3 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। सो अदर जो 40% प्लांट है, in that particular 40% plant they will release the pollen grain in 3 cell stage condition। so this cell stage condition is
3 cell stage. ओके, सो यहां पे हम लोग क्या देखें, यहां पे हम लोग देखें क्या in 60% of the angiosperm pollen grain released in 2 cell stage condition. तो वहां पे 2 सेल का नाम क्या है, फर्स्ट इज द बिगर सेल, दैट बिगर सेल इज द वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल इज नोन एज द जनरेटिव सेल, करेक्ट. एंड रेस्ट 40% में क्या होता है, in that rest 40% of the plants they release the pollen grain in 3 cell stage condition. बाकी 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 3 cell stage का the pollen grain will be released in 3 cell stage conditions. so यहाँ पे 3 cell का नाम क्या होगा, so first the quite bigger vegetative cell. अब जो जनरेटिव सेल ब्रेक होके क्या तैयार किया गया, they form 2 male nuclei. Okay, 2 male nuclei they will form. So as a result 1 plus 2, so that's why there is a total 3 cell stage condition, correct. Okay, हम लोग चलो पहले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या देखे हम लोग, पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है दैट्स कॉल्ड एज एक्साइन, जो इनर लेयर है दैट्स कॉल्ड एज इंडाइन. स्पोरोपोलिन कहां पे मिलता है, एक्साइन लेयर में मिलता है. इन दैट स्पोरोपोलिन डिपोजिशन इज एब्सेंट इन द जाइगोट, बट द इंडाइन लेयर दैट्स मेड अप ऑफ cellulose and the pectose. Okay, now here the pollen grain, when in the time of the development there is a formation of the 2 vacuole, 1 nuclei. Later due to the asymmetrical spindle formation there will formation of the 2 cell stage. Okay, and इस 2 cell stage में 60% plants pollen grain dehiscence कर देता है, pollen grain को release कर देता है, and other 40% of the plants they release the pollen grain in 3 cell stage condition. What are the 3 cell stage? First is the 1 vegetative cell and 2 male nuclei. So togetherly 3 cells. So आज हम लोग इस लेक्चर में बात किए हैं पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलन ग्रेन का यूज और हम लोग उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे. टिल देन बाय. और जाते जाते बोल रहे हैं लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और कमेंट करके क्वेश्चन भी तुम लोग पूछ सकते हो. Okay, so keep subscribing on Biome. Till then, thank you and goodbye. Stay on high.